This is on recording now. Yesterday we were discussing about G and H parameters. We also call these parameters as hybrid parameters. I hope you remember and recall that. So we were doing G and H parameters yesterday. Okay. And it was given like for G parameters, we were having I1 and V2. It was like G11 V1 plus G12. यहाँ I2 आया था. And this was G21. I hope nobody is in waiting room, right? Yes. G21 V1 plus G22 I2. It was like this. Now, if I ask you to define these, you give me a definition. It means I want to find out what ratio under what circumstances will make G11. So definition means writing it in this form. G11 would be equals to I1 upon V1 provided I2 equals to 0. Okay. Similarly, what about G12? What about G21? What about G22? ये सारी चीजें आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. So G12 seems to be something like I1 upon I2 at V1 equals to 0, right? So G12 is the ratio of I1 and I2 at V1 equals to 0. G21 क्या है? G21 is, so G21 seems to be, हर्ष ने अभी जवाब भेजा है, V2 upon V1 at I2 equals to 0. And G22 is equals to V2 upon I2 at V2 upon I2 at under what conditions? When I have V1 equals to 0. ठीक है, ये किया था हमने पहले. अब मान लीजिए आपको एक सर्किट दिया है जिसके कि आपको G पैरामीटर्स निकालने को कहा गया है. So the question is this. I will take the same example because for that example all parameters actually exist. So let me just take that example only. And now you actually would have remembered that this is 1, 2 and 3 in ohms. And this is V2 and this is also V2. Okay, this is V1. The current coming inside is I1 and the current coming from here is I2. Okay. In order to find out what is going to be G11 or G21, in order to find out that, what you have to do is you have to make I2 equals to 0. So the equivalent circuit of this diagram at I2 equals to 0. So iska equivalent circuit at I2 equals to 0. Iska jo equivalent circuit hoga that I am drawing here, it would be something like this. And there is no such current I1 or I2 flowing in. बस हमारे पास ये है, ये सारी चीजें ये दोनों कट जाएंगे. Fine. This is plus minus V2 and this is also plus minus V2. ये 1 ohm का है, ये 2 ohm का है, ये 3 ohm का है. अब आपको क्या करना होता है? What is the next step? We have to put test voltage. A test voltage source. So this is the step that you have to put a test voltage source of 1 volts, let's say. ठीक है, हमने 1 volt की test source लगा दी. Now it is only the matter of solving these two equations. This is going to be IM1 and this is going to be IM2.
और यहां से अगर आप ये इक्वेशंस लिखें तो यू विल गेट इट इन दिस फॉर्म दैट 3im1 फ्रॉम मैश एनालिसिस 3im1 minus 2im2 is equals to what should be on the right hand side? What should I write? +1 or -1? बताइए. So +1. I would write +1. This is 1. Perfect. Also, if I look at this, so this is something like let's say I'm having minus 2im1 plus of 5im2 is equals to what should I write? Minus v2 or plus v2? It was minus v2. I hope you remember, right? लेकिन एक और चीज भी है कि ये जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज के बराबर है. एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 ohm resistance? The voltage across 3 ohm resistance, which is also known as V2, is actually equals to 3 times Im2. And if you use this in this equation, then you will be left with these two equations. 3im1 minus 2im2 equals to 1, and minus 2im1 plus 8im2 equals to 0. ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ भी है कभी 10-15 दिन पहले. Can you solve these equations and give me the value of im1 and im2? Can you solve these equations and give me the value of im1 and im2? What is im1? You may take some time, right? Let me just also calculate it using my calculator, although I know the answer. So somebody has given me that it is going to be 0.4 and 0. So it is going to be like my im1 is equals to 0.4, which is also equals to 2 by 5, right? And im2 is also equals to 0.1, which means 1 by 10. Correct? Now if I go by the circuit parameters, यहाँ circuit के हिसाब से जाए तो I1 is this current, right? This is I1. So what is I1? I1 अभी हमने निकाला, I1 should be equals to Im1. तो Im1 is equals to I1 is equals to 2 by 5. यहां से from here I have I1 is equals to Im1 is equals to 2 by 5 amperes, let's say. And what about V1? V1 is fixed. I have taken it to be from test source 1 amperes. ये ली थी सॉरी वोल्टेज है ना, तो 1 volts ये हमने लिया था. और G11 की डेफिनेशन क्या है? G11 की डेफिनेशन है यू टेक I1 यू टेक V1 का रेशियो. So what is ratio of I1 and V1? What is that? So G11 should also be equals to 2 by 5. What should be the units? What should be the units of this? Unit should be mhos. Mhos. Unit should be mhos. Good. Perfectly all right. ठीक है. Similarly, from here itself, at I2 equals to 0, I can calculate what should be V2 by V1. So V2 क्या होगा? V2 would be 3 times, you see, 3 times Im2. V2 is equals to, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, V2 was 3 Im2. Excuse me. तो ये हुआ 3 multiplied by 1 by 10, because Im2 अभी आपने निकाल के बताया 1 by 10 है. तो ये V2 हो गया, which is R 3 by 10. And what is G21? G21 is V2 by V1. तो G21, which is equals to V2 by V1 at I2 equals to 0 will now become what? क्या हो जाएगा ये? It would simply be 3 by 10. And what would be the units? It will be unitless because it is ratio of 2 voltages. ये तो ही पहली कहानी. ठीक है? Now what you have to do is you have to take equivalent of this circuit when V1 equals to 0 volts. तो V1 को 0 करने के बाद इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट आपको लेना होगा इस सर्किट का. ठीक है? तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग दैट. लेट मी जस्ट डू इट इन दिस फॉर्म. तो ये आपको दिख रहा है ना इस जगह?
I hope you are able to see that, right? So let me just draw a lines. At V1 equals to 0, the equivalent circuit of this will be and this would be a short circuit, right? This will be a short circuit now. This will no more be a V1 volts. So this is 1 ohms, this is 2 ohms, this is 3 ohms, this is plus minus V2 and this is 1 volt या V1 जो कि अब मैंने शॉर्ट सर्किट करके क्या कर दिया 0. This still is I1 and this still is I2. तो यहां से यहां कैसे है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. ठीक. अब बस इस सर्किट के लिए सॉल्व करनी है हमें कुछ इक्वेशंस. फाइन. सो फॉर दिस सर्किट अभी एक चीज और बची है. हमें क्या करना होगा इसमें? So test voltage. यस, द टेस्ट वोल्टेज. तो जब टेस्ट वोल्टेज मान लीजिए यहां मैंने एक 1 वोल्ट का लगाया तो ये भी 1 वोल्ट हो जाएगा अपने आप में. So there is a 1 volt source here and a 1 volt source here. From ये प्लस माइनस है. ठीक है. And now you can easily solve the three equations. It is not going to be that tough. Let's say this is going to be your IM1, this is going to be your IM2 and this is going to be your IM3. There can be many other ways. आप अपने intuition से भी solve कर सकते हैं कि for example इसके across जो voltage होगा that would be what V2 upon 3. इसके अक्रॉस जो करंट होगा दैट वुड बी V2 upon 3 क्योंकि वोल्टेज V2 है. तो यहाँ से करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा I2 minus V2 by 3. तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. देयर आर मेनी पॉसिबल वेज. ठीक है. जैसे मान लीजिए अगर आपको नेट के एग्जाम में या गेट के एग्जाम में ऐसा somebody just had a question about this whether this should be minus of something. See, it will not be minus because दिस इज अ पैसिव एलिमेंट. तो पैसिव एलिमेंट में करंट प्लस टू माइनस ही फ्लो करता है. ठीक है. Whose question was this? Let me just check. It was Nitesh. Nitesh, ये resistance is a passive element. We always use from plus to minus the current is flowing. Okay, good. चलिए. A bit digression, no worries. तो there are many possible ways. लेकिन मान लीजिए जैसे गेट के एग्जाम में आप चाहे तो आप 3x3 का सिस्टम थोड़ा ना सॉल्व करने बैठेंगे. Then you will use some smart techniques. तो कुछ smart techniques यूज कर सकते हैं. यहाँ हम बहुत डम टेक्निक यूज कर रहे हैं कि 3 इक्वेशन बना लें. ठीक है. तो should I disclose that Yes, smart technique excuse or me, should sir. I continue with this? Yes, please. हाँ यस सर, मैं वही कह रहा था, स्मार्ट टेक्निक भी बता दीजिए. Yes. So first of all, you just formulate these equations, then I'll tell you that smart technique also. So यहाँ पे आप देखिए कितना ज़्यादा problematic situation है. That it is going to be something like 3im1 minus 2im2 और फिर साथ में 0 im3 क्योंकि 3 में कोई कॉमन नहीं है is equals to 0. Similarly, what I'm going to have from this equation is this. It is 5 im2 minus 3 im3 and minus 2 im1 is equals to minus of 1 volt. और फिर यहाँ से अगर देखें तो it is plus 3 im3 and minus 3 im2 is equals to minus 1 volt. So ये 3x3 का सिस्टम सॉल्व करना पड़ेगा. वहीं अगर आप यहां से देखें from here, let's say you are having a circuit in this form. Okay, so if this current is V2, this voltage is V2, this current is I2, this voltage is V2, this current is let's say I1. No worries. ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है.
ठीक है, तो क्या आप इस पॉइंट पर लेट्स से इस इसके अक्रॉस करंट क्या होगा, इसके अक्रॉस करंट होगा V2/3, ठीक है, इसके अक्रॉस करंट होगा V2/3, फाइन। एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यहां से यहां तक, व्हाट विल बी दिस वोल्टेज, कैन एनीवन गेस? इट इज राइट देयर, किसी ने आंसर भेजा भी है, V2 नहीं है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 2V2 है। कैसे? V2 प्लस V2, देखिए ये वाला एक V2 ये इसके अक्रॉस जो है, और एक V2 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो है। तो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दरअसल 2V2 है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2V2 है। तो इसके अक्रॉस करंट कितना हुआ, 2V2/2 ओम्स। तो इसके अक्रॉस करंट की ही वैल्यू V2 है, दिस इज करंट। आर यू गेटिंग इट? Although I told you that this is smart technique, but smart is not always easy. So इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2V2। कैसे? एक V2 ये वाला और एक V2 ये वाला। मुझे इसको ग्रीन में करने दीजिए ताकि पता रहे आपको कि ये वोल्टेज नहीं करंट है, दिस इज शोइंग अ करंट, राइट? तो अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 2V2 है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम्स है, तो इसका करंट कितना हो गया, 2V2/2 ohms which is equals to V2 amps। तो ये V2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें, ठीक है। I1 करंट यहां से आ रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट होगा कोई बता सकता है? What would be the current in this branch? If I2 was coming but V2/3 is lost in this branch, so what should be this? तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा that would be I2 minus V2/3, ठीक है, this current I2 minus V2/3। लेट्स, तो इस पॉइंट पे अगर आपसे पूछूं मैं, इस पॉइंट पे किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा, तो इट वुड बी I1 प्लस I2 minus V2/3 equals to V2, fine। How? You know that because I1 is coming in, I2 minus V2/3 is coming in, and V2 current is going out, ठीक है। And there is another important thing also, that is going to be your last thing, which will give you a relationship between V2 and I1, and that would be excuse me, that simply would be to use अच्छा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा कोई बता सकता है? What would be the voltage across this resistance? जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। क्यों? दोनों पैरेलल में है, ठीक है। Yes, sir. अब पैरेलल में है तो polarity होगी सर। नहीं, with same polarity. Why opposite polarity? It would be positive, it would be negative, like this. Yes, sir. Okay, yes, I agree that now the current is flowing from minus to plus, opposite polarity, yes. So इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 2V2। Sir, 1 into I1। नहीं, वोल्टेज हाँ, इज 2V2 सिंपली, जो Yes, sir. इसके अक्रॉस वोल्टेज वही इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो ये जो I1 है वो कितना होगा? I1 इज सिंपली 2V2/1 विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये माइनस से प्लस जा रहा है। तो यहाँ एक और चीज हमें मिली, दैट योर I1 शुड एक्चुअली बी इक्वल्स टू माइनस 2V2/1। 2V2 इज द वोल्टेज, अपॉन 1 इज फॉर रेजिस्टेंस। ये हो गया। नाउ यू कैन पुट V2 इक्वल्स टू 1। अब टेस्ट वोल्टेज यही लगा दीजिए, V2 इक्वल्स टू 1, और दो इक्वेशन सॉल्व करनी रह जाएंगी। समझ गए? तो दो इक्वेशंस आई आपके पास। एग्जाम में ये सॉल्व नहीं करते हैं, like there can be many different questions given to you, but you won't solve 3 equations, it would take time,
लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें जरूर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया है हमने, केवल ये देखा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, करंट कितना, वोल्टेज कितना, करंट कितना, दैट्स इट। इन दो इक्वेशन में आप V2 की जगह 1 रख दीजिए। So when you will put V2 equals to 1, आपको I1 और I2 में रिलेशनशिप मिल जाएंगी, ठीक है। लेट अस डू दैट। सो ये दो इक्वेशंस हैं अब हमारे पास, कौन कौन सी। एक इक्वेशन है ये वाली, I1 प्लस I2 माइनस, लेट मी जस्ट पुट V2 equals to 1 volts now, 1 by 3 equals to 1। एक तो ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दैट माय I1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू -2 टाइम्स डॉट 1 बिकॉज V2 इज 1, राइट। यहां से तो I1 अगर -2 आ रहा है मेरे पास, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो इसको आप अगर सॉल्व करके देखें, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट I1 is equals to -2 plus let me just flow that, -2 plus I2 minus 1 by 3 is equals to 1. It would become I2 is equals to 3 plus 1 by 3. Okay, so what is I2 now? 3 is a 9 plus 1 is 10 by 3. This is your I2. Fine, 10 by 3. तो अब यहां से हमारे पास ये दो चीजें निकल आएंगी। क्या, कौन सी दो चीजें? एक तो I1 अपॉन I2 का रेशियो पता चल जाएगा। सो व्हाट इज I1 अपॉन I2 नाउ? यहां से ही अगर आप देख लें, व्हाट इज I1 अपॉन I2? So I1 upon I2 should be -2 upon 10. It should be what, I1 upon I2 कर रहे हैं ना, 10 by 3. It should be like this, right? -2 upon 10 by 3 because this is I2. So this will be something like -2 upon 10 into 3, which becomes -3 by 5. एंड -3 by 5 ये किसकी वैल्यू है? दिस इज योर G12, है ना, एट V1 इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ आई? आई थिंक आई एम नॉट फास्ट नाउ। यस सर। ठीक है। अब फिर दूसरी चीज क्या है, लास्ट क्या है? G22 निकालना है आपको, G22 विच इज व्हाट, V2 अपॉन I2, V2 अपॉन I2 एंड V2 अपॉन I2 एट V1 इक्वल्स टू 0। तो V2 तो हमारा क्या था? इट वाज 1, और I2 अभी थोड़ी देर पहले निकाला, इट इज व्हाट, 10 by 3, तो 10 upon 3 which will actually become 3 by 10। अच्छा, अब इनकी यूनिट्स बताइए, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ G12? G12 will be unitless. G12 will be unitless, and what will be the value of this G22? ohms. G22 will be in ohms. Fine. अब आप जो है इसका जो कल हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाने को आपको कहा था, तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं by adding two currents or by adding two voltage sources. ठीक है, it's up to you how you are going to do that. So I think I don't need to make you at least. So if it is like I1 is equals to V1 plus V2, so you would take and add them in parallel, and this would be added in series, और इनकी values रखनी होंगी बस, that's it. Should I do that, or you will be able to do it on your own, the equivalent circuit in parameters को use करके? So now you have this. The G matrix is this. It looks this is -3 by 5, this is 3 by 10, and the other two values we calculated as 2 by 5, and this was 3 by 10. Okay, तो कल जो एच पैरामीटर निकाले थे उसका इनवर्स इस जी के बराबर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। So is it okay? I'm leaving it to you. How would you make the equivalent circuit? कल बता दिया था आपको कि equivalent circuit would look something like that. So you just have to put these values on the circuit we did yesterday. Fine. So is it okay? Can I proceed, or should I repeat anything? Yes or no? Okay, let me check. Okay,
So I can proceed then. Fine. Now we have to do two different things. One is to find out what would be the condition for reciprocity in H parameters or in G parameters. So I would make you recall that reciprocity means, let's say you are having a network N. This is a network N, and over here you have, let's say, a voltage source Vs, and here you have an emitter A, and this voltage source and this emitter are ideal. Fine. This is the current I1, this is the current I2, but because emitter is a passive device, right? So इसमें हम मानेंगे, assume करेंगे that the current will be flowing in this direction and I'll call it as I prime. ये, या फिर अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, you have N and you interchange the position of ideal emitter and voltage source. उसके लिए कुछ बंदिशें हैं कि ये N लीनियर ही होना चाहिए. और इसके एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बाइलेटरल होने चाहिए, इसमें कोई डायोड ना हो. तब what you can do is you can replace the position of this. So now your V2 becomes, so this was first V2, this was पहले V1. Now your V2 becomes equals to Vs, and here is the reading of emitter coming in. This is your I, and let's say this is your I1 which is going in, and let's say इसको मैं I बोल रहा हूँ. Fine, I'm calling this as I. Then this is I2. Okay. Reciprocity says if N is a linear bilateral network, then the reading of emitter should not change. Okay. Reciprocity says this. But the condition on voltage source and this emitter is that they should be ideal. These two should be ideal. And this network should be linear and made up of only reciprocal or bilateral elements. कोई नॉन बाइलेटरल एलिमेंट ना हो. और नॉन बाइलेटरल एलिमेंट का एग्जांपल क्या है? नॉन बाइलेटरल एलिमेंट का एग्जांपल है डायोड. एक दिशा में करंट फ्लो करता है, दूसरी में नहीं करता है. ऐसा नहीं होना है. फाइन. तो हमारे पास दो फिगर हैं, एक फिगर 1 है और एक फिगर 2 है. फिगर 1 के लिए अगर आप एस पैरामीटर्स लिखें, ठीक है. सो एस पैरामीटर्स मैं भूल गया हूं, कोई याद दिलाएगा मुझे कैसे लिखते हैं? पहली इक्वेशन किस में होती है? वोल्टेज में होती है पोर्ट 1 की, या करंट में होती है? भूल गया कितनी जल्दी. सो दैट इज इन फर्स्ट इक्वेशन फॉर एच पैरामीटर्स इज इन एच पैरामीटर. हाँ, फॉर एच पैरामीटर इट इज इन वोल्टेज. करेक्ट. हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने. तो V1 इज इक्वल्स टू रिटन लाइक H11 I1 प्लस H12 V2, बिकॉज हाइब्रिड में यहां करंट आ जाएगा. एंड दिस इज H21 I1 प्लस H22 V2. अब इस सर्किट की बात कर रहे हैं हम, इस वाले के लिए. तो याद रखिएगा कि एक आइडियल एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा 0 होता है, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है. तो इस सर्किट में जो V2 होगा दैट विल बी 0. ठीक है. इस सर्किट में जो V2 होगा दैट विल बी 0. तो ठीक है, हमने V2 0 कर दिया. V2 0 करने से हमारे पास क्या चीजें बची? एक बचा हमारे पास V1 इज इक्वल्स टू H11 I1, और एक हमारे पास बचा I2 इज इक्वल्स टू H21 I1. भाई V2 तो 0 हो गया, तो ये दोनों तो खुदकुशी कर गए. ठीक है, अपने आप ही मर गए. वही तो होती है खुदकुशी, नेचुरल डेथ नहीं है. V2 हमने जबरदस्ती 0 कराया. चलिए, खैर. अब V1 की वैल्यू, V1 इज व्हाट? V1 इज Vs. तो और प्रिसाइजली इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, दैट Vs इज इक्वल्स टू
Vs is equals to H11 I1. ठीक है, और यहां से एक और चीज भी लिख सकता हूं, व्हाट इज I2? I2 इज माइनस आई प्राइम. देखिए दिस इज I2, तो इसका ऑपोजिट इज माइनस आई प्राइम. So I can write that minus I prime is equals to H21 I1. और अगर ऊपर वाली इक्वेशन से यहां से आप I1 की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगी दैट माइनस I प्राइम इज इक्वल्स टू H21 इंटू VS अपॉन H11. क्या ये रिलेशन में आपको कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं है? आई होप नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? फाइन. तो एक रिलेशन ये आई हमारे पास. किसी का मैसेज आया है? नहीं है परेशानी. चलिए, दिव्यांशी को नहीं है, बाकियों का पता नहीं, मानसी को भी नहीं चाहिए. ठीक है ठीक है. तो ये इक्वेशन तो फिगर 1 के लिए हो गई. अब बात करते हैं फिगर 2 के लिए. अभी सब भूल जाते हैं, इसको साइड में रख देते हैं. लेट अस टॉक अबाउट फिगर 2. In figure 2 also you have these equations. V1 is equals to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equals to H21 I1 plus H22 V2. लेकिन यहां V1 0 है. ठीक है, V1 0 है. और V2 क्या है यहां पर? What is V2? V2 यहां जो है वो Vs के बराबर है. तो केवल ये वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें. आप देखिए 0 इज इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 और V2 Vs के बराबर है. तो मैं यहीं पे इसी इक्वेशन में कुछ फेरबदल कर देता हूं. मुझे मिलेगा H11 I1 with a negative sign. You see here would be a negative sign will be equals to H12 Vs. किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? V2 is equals to Vs के बराबर है. अब यहां से what I have got is I1 जो कि I माइनस ऑफ I के बराबर था. देखिए ये जो I1 है वो माइनस I के बराबर था, तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. इट वुड बी रिप्लेस विद I इक्वल्स टू H12 Vs अपॉन H11. ठीक है. अब रेसिप्रोसिटी की डिमांड ये है कि ये I या फिर ये वाला I, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पे माइनस लगा देता हूं इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. सो इफ दीज टू आर गोइंग टू बी इक्वल तो हमारे पास एक बंदिश और आ जाएगी, एक रिलेशनशिप दोनों में, कि ये होना चाहिए फिर तो कि H21 विद अ नेगेटिव साइन इनटू Vs अपॉन H11 शुड बी इक्वल्स टू H12 Vs अपॉन H11. H1 से H1 कट गया, खुदकुशी हो गई. Vs से Vs कट गया. कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी आई कि H12 शुड बी इक्वल्स टू माइनस H21. ठीक है, ये आई. सिमिलरली G वाले अगर पैरामीटर्स होते, G पैरामीटर के लिए भी यू वुड हैव गॉट G12 इज इक्वल्स टू माइनस G21. इस तरीके से कंडीशंस आती है. ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मान लीजिए ये एक H पैरामीटर की मैट्रिक्स लिखी है मेरे पास 3 माइनस 1 1 3. क्या ये रेसिप्रोकल हो सकती है? हाँ या ना? बताइए, whether this would be reciprocal. Yes sir. This is, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस साइन है. ठीक है, इसी तरीके से ये बताइए क्या ये G मैट्रिक्स लिखी है 3 माइनस 4 4 3, ये दोनों नेगेटिव है, क्या अब ये रेसिप्रोकल मैट्रिक्स है? क्यों नहीं है, या क्यों है? ये रेसिप्रोकल हो सकती है? दिस विल नॉट बी रेसिप्रोकल, राइट? और ये इसका बताइए, इफ z इज रिटन लाइक दिस 2 1 माइनस 1 2, whether z is reciprocal, whether z is reciprocal? No, z is not reciprocal. Okay, because you know that for reciprocity in z the condition is z12 is equals to z21. तो रेसिप्रोसिटी क्लियर हो गई. रेसिप्रोसिटी के अलावा, अच्छा अगर मान लीजिए कोई सर्किट जो है रेसिप्रोकल है, तो आपके पास 4 में से, या मान लीजिए कोई 2 पोर्ट पैरामीटर्स जो है या 2 पोर्ट जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि वो रेसिप्रोकल है, तो आपको 4 में से केवल और केवल
3 पैरामीटर्स निकालने रह जाते, क्योंकि बाद का तो दूसरा साइन ही चेंज करना है। अगर एच और जी में है तो साइन बदलना है, और अगर एच और जी में नहीं है, जेड और वाई में है, तो सेम ही रखना है। एक और कंडीशन भी पड़ी थी, क्या आपको याद है? दैट वाज ऑन रेसिप्रोसिटी, दैट वाज ऑन सिमेट्रिसिटी। रेसिप्रोसिटी तो हो गया, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी करेक्ट। तो कोई कोई रिकॉल कराएगा कि सिमेट्रिसिटी में क्या किया था? वी मेड डायगोनल एलिमेंट सेम, लेकिन जी और एस पैरामीटर्स में ऐसा नहीं है। देखिए, सिमेट्रिक का अपने आप में एक मतलब होता है, हम मैथमेटिकली सिमेट्रिक बनाने की कोशिश में नहीं है। हम सिमेट्रिक का मतलब कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो इम्पीडेंस पोर्ट 1 को दिख रहा है, वही इंपीडेंस पोर्ट 2 को भी दिखे। तो हम सिमेट्रिसिटी में ये बोलते थे दैट Z11 which is the impedance at port 1 V1 upon I1 or Z22 which was the impedance at port 2 V2 upon I2 should be same। हम ये बोलते थे, जिसका अपने आप में एक फंडामेंटल फिजिकल मीनिंग है इन रिगार्ड्स ऑफ द सर्किट। हम केवल उस मैट्रिक्स के 2 एलिमेंट सेम करके या डायगोनल एलिमेंट सेम करके उससे सिमेट्रिक बोल रहे थे, क्योंकि वहां ऐसा अलाउड था। लेकिन एक सिमेट्रिक नेटवर्क वो कहा जाता है जिसके दोनों साइड के इनपुट इंपीडेंसेस सेम हो। ठीक है, वही कंडीशन हमें जी पैरामीटर में भी लगानी है। जी पैरामीटर के डायगोनल एलिमेंट सेम करने से काम नहीं बन जाएगा कि वो नेटवर्क सिमेट्रिक कर दिया आपने, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी, नेटवर्क नहीं। समझ रहे? तो अब हमें कंडीशन वही यूज करनी पड़ेगी दैट फॉर सिमेट्रिसिटी वी शुड हैव समथिंग लाइक V2 upon I2 which is going to be equal to Z22 should be equals to V1 upon I1 which is going to be equals to Z11। तो ये कंडीशंस यूज करनी होंगी हमें फॉर सिमेट्रिसिटी। सो आपको रिकॉल करना है दैट फॉर Z पैरामीटर्स Z11 which was nothing but V1 upon I1 at Z V2 equals to 0, it was V2 ओपन सर्किट था ना, ZOC, तो I2 equals to 0 था। ठीक है, and Z22 which was equals to V2 upon I2 at I1 equals to 0। For symmetricity, these two should be equal, Z11 should be equals to Z22। ठीक है, let us reconnect and we would try to finish this in 5 minutes। उसके बाद आपकी एक और क्लास भी है, right? Let us reconnect, okay? So I would stop sharing and we would reconnect, huh?